We are live. Yeah. So, very good evening, everyone. On behalf of Sagar Group of Institutions, I would like to welcome all the attendees and all the panelists to join us for this session. So, thanks to the newly invented technologies that are helping us so that we can have the live sessions and everything and still attached to all the organizations and all the panelists and every technologies. No. Now we are on this prospect to see that how Sagar Group is helping and from their journeys from the smallest point of their career till the longest point they want to achieve in their life. So let me start by introducing you to all the panelists we have here. I want to start with Naresh. Good evening, everyone. I am Naresh Jaglan. I have completed my BE from Sistek Gandhinagar and currently working as a maintenance executive in SMPL. This is the spinning unit of Saga Group in Tamad village. Now over to Pankaj. Hello all, I'm Pankaj Mangtani and I'm student of Systec MBA and currently I'm doing digital marketing associate at Systec and in this domain हम लोग जितना भी सोशल मीडिया का एक्टिव रहता है सागर ग्रुप का जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सागर ग्रुप के स्कूल्स कॉलेजेस अग्रवाल बिल्डर्स सागर मैन्युफैक्चरर्स सबकी सोशल मीडिया और जो वेबसाइट मेंटेनेंस रहती है वो सब कवर करते हैं सो दैट्स माय जॉब Over to Vimalendu. Okay, thank you, Mr. Deepak. Firstly, I want to thank entire training and placement cell of Saga Group of Institutions for giving us such a social digital platform to aspirants to interact aspirants to the professional degrees like engineering, pharmas, MBAs, and other medicals. So, hello, dear viewers. This is Vimalendu Kumar Gautam, an alumni of Systec. I have passed my Bachelor of Engineering in 2018 with civil engineering. Currently, I am working with structural design engineer with Agrawal Builders. Yeah, very nice to hear all the panelists on here. So let us start our prep talks and we start with talking to Mr. Naresh. So, sir, I know Yes. that you happen to be the part of. Hello, good to see Yes. Mr. Sunil as well here. Mr. Welcome, Sunil. Good evening, Pankaj. Good evening, Deepak. Yeah, good evening. Good evening. So we happen to know that you have Sunil is being the part of Systec during his education time as well. So I wanna know Sunil ke how you happen to be part of this organization and how this helped you in your career growth. जैसे कि अभी मैं सागर ग्रुप के साथ में ऑन द पोस्ट ऑफ वेब डेवलपर पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि सागर ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप में मैं एक मतलब कि वेबसाइट डेवलपर के पोस्ट पे सारी वेबसाइट्स को मतलब कि ऑन डेवलप कर रहा हूँ मेंटेनेंस कर रहा हूँ बहुत अच्छा है ये सुन के सो आपकी एजुकेशन से लेके और आपके लाइक आपको सिस्टेक व्हाट हैपेंड टू बी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो एक हर एम्प्लॉय को प्रभावित करती हैं सो ऐसा क्या दिखा आपको जो आपने इसको अपना एज अ करियर ग्रोथ में ऑप्शन लेने के विचार किया सबसे पहले तो जो मतलब कि फील्ड थी मेरी जैसे कि टेक्निकल फील्ड थी जो मेरी थी वेब डेवलपमेंट और तो बैकग्राउंड जो था मतलब कि टेक्निकल तो उसमें मुझे वैसे ही जॉब मुझे ऑफर की सिस्टेक ने सारा ग्रुप ने जिससे कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये इंडस्ट्री में जो आज के टाइम में चल रहा है बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट सिस्टम मुझे प्रोवाइड कर रहा है मैं वर्क फ्रॉम होम कर पा रहा हूँ कोविड-19 जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैल रहा है और डिवाइस कितना मतलब कि ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं तो ऐसे समय में भी सारा ग्रुप ने मुझे वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड किया और हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं यहाँ की सारी वेबसाइट्स जो भी आज की ट्रेंडिंग में चल रही है ASP.NET और बूटस्ट्रैप AngularJS सब पे हम लोग वर्क करते हैं और सारा ग्रुप को बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं
बहुत अच्छा लगा सुन के। दिस इज दी पार्ट जो एक हर एक फ्रेशर और एक एंट्री लेवल एम्प्लॉयर हमेशा अपने बारे में सोचना है एम्प्लॉय कि उसका हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो ज्वाइन करे वो हमेशा ही एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड हो, जिसमें चीजें उसके मुताबिक और उसकी ध्यान रखते हुए नेसेसिटीज पे ध्यान। So now I am asking to Mr. Naresh how you Yes, happen to be Deepak. part of this organization, and how this particular organization help in your uh, career development as Um, well as personality development. How this actually shaped your personality? Deepak, I joined the SysTech group of college in 2010, and the journey was quite good. After taking admission, you are not confident for campus placement, but the way SysTech trained you was exceptional. In horse course training program for campus recruitment helped me a lot. Even after joining SysTech, the working environment here is very good. It helped me a lot. एसएमपीएल के सभी स्टाफ मेंबर्स सीनियर्स वे आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, इन्होंने मेरे को करियर के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प किया। एंड इवन एसएमपीएल ग्रुप जो है स्पिनिंग यूनिट है, जैसे कि ये काफ़ी लेटेस्ट मशीनरी है यहाँ पे। इवन आफ्टर हम हर 1-2 साल में एक्सपेंशन होता है तो यूनिट बड़ी होती जाती है, तो वी आर कॉन्स्टेंटली एडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, ये लगातार हमारा बिल्कुल टॉप लेवल पे रहता है, सारी मशीनरी एडोप्टेशन। तो यहाँ पे काम करते हुए मुझे टेक्नोलॉजी के साथ सीखने को मिला, उसमें मेरी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट यदि हम दूसरी कंपनी या इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें तो काफ़ी अलग है। यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमें काफ़ी हेल्प करता है करियर की ग्रोथ में। जी बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के मिस्टर नरेश। जी दिस इज अगेन जी जैसा आपने कहा कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एक एम्प्लॉयर की कि जी वो जी बहुत ही ग्रोथ पे ओरिएंटेड होता है कि हर एक एम्प्लॉय जी पे और एक चीजें देखता है कि उसके टैलेंट्स पे कितना वर्क किया जाए, वो कितना ग्रो जी करे। जी करियर के ग्रोथ में हमारे सीनियर्स का और हमारे को मेंबर का, स्टाफ का काफ़ी रोल होता है कि वो हमें कितनी अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम उस इन्वायरमेंट सस्टेन होके और अपने करियर में लगातार ग्रोथ करें। तो एसएमपीएल ने मुझे ये सब कुछ प्रोवाइड किया। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर हैं, इवन चेयरमैन सर हैं, जीएम सर, इन्हें काफ़ी मेरे को पॉलिश किया है, कॉन्स्टेंटली मेरे को बताया कि आपको ये काम सीखना है, उसके कारण आपको ग्रोथ करना है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे करियर में अभी तक। एंड इवन जैसे इस समय हमारा पूरा देश कोरोना से पीड़ित है, तो काफी इंडस्ट्री में हम सुन रहे हैं कि मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं या फिर वो इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। इवन ये मैं भी यहाँ पे एसएमपीएल के कैंपस में ही रहता हूँ, और यहाँ पे भी काफी मजदूर, प्रवासी मजदूर रहते हैं। बट हमारे एसएमपीएल का माहौल इतना अच्छा है कि यहाँ से कोई भी प्रवासी मजदूर को घर नहीं जाना पड़ा। हमने सभी को कोरोना में रहते हुए सेफ महसूस करवाया, जिसकी वजह काफी अच्छा अपना एडमिनिस्ट्रेशन रहा सागर ग्रुप का, कि उन्होंने हमें इतना सेफ महसूस करवाया कि हम कॉलोनी में, एसएमपीएल की कॉलोनी में काफी सेफ महसूस करते थे। यहाँ पे हमारी हर रिक्वायरमेंट को कोविड के समय पे सबको फुलफिल किया गया, जिसकी वजह से जो मजदूरों का है, आपने सुना होगा, लाइन चल रहा है, विदेश जा रहे हैं अपने घर वापसी, ये सब प्रॉब्लम हमने इंडस्ट्री में रहते हुए नहीं फेस किया। तो ये भी काफी श्रेय मैं सागर ग्रुप को देना चाहूंगा कि उन्हें इतना अच्छा मेंटेन किया, और इसके लिए हेल्पफुल रहा। बहुत अच्छा है। वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू मिस्टर नरेश। नाउ ओवर टू थैंक यू दीपक। पंकज। मैंने जैसे ही जाना है कि यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमबीए, जो आपका सिस्टर की एक पार्ट रहा, और यू ऑलवेज हैप्पी टू बी स्किल ओरिएंटेड वर्क के जिस स्किल पे मैं काम करना चाहता हूँ उसी स्किल पे मुझे काम करने को मिले और चीजें करे। सो हाउ सिस्टेक हैपेंड टू गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये जानना है पंकज आपसे। आई एम ग्लैड कि तुमने स्किल ओरिएंटेड वाली बात उठाई। तो ग्रेजुएशन किया हुआ था, एजुकेशन पूरी कंप्लीट थी, सारे जो भी नॉलेज रहती सब थे, और जो प्रोफेशनलिज्म वाला था वो चीज़ मिसिंग थी। तो वो सिस्टेक एमबी ने तरीके से दिया। मतलब डे 1 से जब से मैंने एंट्री करी थी, पूरा स्किल पे काम किया, जो भी टेक्निकल चीज़ें रहती है जिस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे जाना है उस पर काम किया। उसके बाद कॉलेज के इवेंट्स वगैरह थे, मैनेजमेंट ट्रेनी था 2-3 इवेंट्स के लिए मैं, तो उसमें क्या बिल्कुल रूट लेवल पे उन्होंने सिस्टर एकेडमी ने सिखाया मेरे को कि कैसे तुम्हें मैनेजमेंट में जाना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को।
उसके बाद कॉलेज का सैक कम्युनिटी बहुत बहुत हेल्प करी उसके स्टूडेंट काउंसिल ने, उसके थ्रू ही मैं डिजिटल टीम के टच में आया और डिजिटल मार्केटिंग के टच में आया। तो वहां से पूरा मतलब वो पूरा फाउंडेशन स्टोन था मेरा पूरा सिस्टेक एमबीए का। तो बिल्कुल स्टेपिंग स्टोन की तरह जैसे बढ़ते हैं ना ऊपर ऊपर कॉर्पोरेट लाइडर में, तो वो सिस्टेक एमबीए ने पूरा सिखाया। तो डे वन से स्किल पे काम कर रहे थे और बहुत इजीली डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा खासा कर लिया है कवर मैंने। नाइस नाइस। सो मुझे लगता है आपने बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे होंगे जो आपके एक इंस्टीट्यूशंस ने आपको दिया, और मुझे लगता है आपके उन एक्टिविटीज और जो करिकुलम चीजें रही होंगी उससे काफी आपको हेल्प मिला होगा कि आपकी एक्टिविटीज और आपके ग्रुप में। हाँ, एक्चुअली में सिस्टर एमी ने बहुत इसके लिए हेल्प किया। तो एक्टिविटीज और इवेंट्स का बहुत फोकस रखते हैं हम लोग। उसके अलावा बेसिकली एमबीए आप पढ़ के नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा एमबीए के लिए। तो ग्राउंड लेवल पे ही इवेंट्स के थ्रू मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत सारे इवेंट्स जो कॉलेज के इवेंट्स भी थे वही हमने खुद ने मैनेज किए थे, पूरा उसका फाइनेंसेस, उसका प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग। तो पूरा ग्राउंड लेवल पे पूरा प्रैक्टिकली हमको मिल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके जैसे इंटर्नशिप्स की बात आई तो इंटर्नशिप भी एक आध दो जगह ट्राई किया था, अच्छे खासे गए थे, फील्ड एक्सपीरियंस थोड़ा लिया था। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग वाली इंटर्नशिप की बात आई थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा टेक से भी था। तो मुझे लगा था कि यार ये चीज़ फील्ड बिल्कुल न्यू है और कुछ अपना उसमें फ्लेवर ला सकते हैं, तो इसके लिए ऑप्ट किया। और सागर ग्रुप बहुत हेल्पफुल था इसके लिए। मतलब सिस्टेक के लिए बेसिकली काम सिस्टेक में हो रहा है और पूरे सागर ग्रुप की डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करते हैं। तो ग्रुप की तरफ से फ्रीडम बहुत है, आप मतलब जैसा आप बोलोगे ग्रुप को, आपको वो ग्रुप पूरा सपोर्ट करता है, टॉप मैनेजमेंट से फुल सपोर्ट रहता है। और एक इंटर्नशिप लेवल बोलो या बिल्कुल फ्रेशर लेवल बोलो, पर फ्रेशर लेवल पे भी एक अच्छा खासा उन्होंने प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म दे मिलता दिया है है। कि हर कोई हाँ, अपने आप को बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दे दिया है कि मैं खुद को फ्रीडम है, मैं अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ जो बेनिफिट है ग्रुप के लिए तो मैं अपने व्यू पॉइंट्स रख सकता हूँ, जो इंटर्नशिप या फ्रेशर लेवल पे बहुत कम मिलता है ग्रुप में। तो वो बहुत बेनिफिशियल हो गया मुझे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहा पंकज ने। जैसे ये दिस इज बीन ये हर एक एम्प्लॉयर उसकी में एक चाह कह सकते हैं, दिस इज बीइंग एवरी विश के वो जितना काम करे उस काम की उसे एक ओनरशिप मिले, एक अकाउंटेबिलिटी मिले, और वो उस काम के लिए हो कि नहीं नहीं दिस हैज बीन डन बाय मी, एंड उसको पूरा अप्रिसिएशन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मतलब मेरे पूरे इनपुट सुने जाते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का कुछ चेंजेस हो और इन टॉप मैनेजमेंट को लगता है या मैनेजमेंट को लगता है कि ये चीज़ सही है, तो वो बिल्कुल मेरी बात सुनते हैं। वो बहुत उनकी तरफ से वन ऑन वन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है उनसे। Good to hear from you, Mr. Pankaj. Now moving to Mr. Vimlindu. Yeah. Sir, I happen to know that you being the part of the very core civil engineering of the Sagar group itself. तो मुझे जानना है कि कैसे आप justify, अगर मैं आपसे कहूँ कि how choosing Sagar group as an employer for yourself, how this made a difference and how you are doing in your work, sir. Okay. Firstly, I want to introduce Sagar Group. I just want to talk about the Sagar Group. Then I must say this is a giant corporate culture of the Central India, right? And we have various ventures like real estate, which has a rich experience of 39 years in the construction industry. Actually, we delivered residential projects touching to almost 7,000 plus families. And in past 2 decades, we are also developing our educational and industrial infrastructure, right? Then Sagar Group has a second one venture, that is education industry, which belongs to Sagar Public School, and that is SysTech, Sagar Group of institutions, right? And the third one is Sagar Manufacturers Private Limited, which produces super quality yarns under the brand of Sagar Yarns, right. And the next one is our Sagar Nutriments Private Limited, which produces a best quality of basmati rice under the brand name of Sagar Rice, and is sourced by major exporters and the brand holders of the India. And we have also a Sagar Vidya Niketan school, which is a charity school in which we educate a poor background children with a world-class education facilities. If we talk about my journey of engineering college, that is
actually, you all knows we have a dilemma of choosing branch of engineering, right? And when we go through the J examination and go through the different counselings. I just wanted to take a civil engineering as a branch. I get denied by many government colleges, and uh, then I searched private colleges for civil engineering branch. Then I found SysTech and took admission in this. If I talk about the journey of engineering college, then I should say that was really awesome. As the Saga Group of Institutions always conduct training sessions, workshops for the students uh, Sagar Manthans, Sagar Fiestas, Technofest like Nirman. Nirman is very effective to everyone, and it helps in your upcoming career. And believe me, this is actually work. I can feel it. So I can say I raised in a well-professional engineering environment where I learned how an engineer can serve the world better, actually build better, create better, innovate better. Uh, Actually, if we talk about myself during the college, uh, I was somehow focused on civil engineering softwares like design softwares, project management softwares, and now I am as a practicing structural design engineer. By these softwares, actually, this software always helps me out with the solutions. Uh, uh, After okay, this is disturbing that my echo. I got an echo. Don't, It's happening. You can continue with yeah. this. Hello. It's continuing. Getting a echo sound. Yeah, Yeah. now it's clear, sir. You can continue. Now it's clear. Yes. You all getting a clear sound? Yes. Of course, Mr. Vimlendu, we are very clear. Yes, you can go. Okay. If we Then I placed in Agrawal Builders in June 2018 with a great job opportunity of a structural design engineer. Uh, Generally, I work on here with Statpro softwares, ETAP software, and Primavera software for enhancing the engineering skills. Though I'm a civil engineer, I basically relate engineering is all about the sustainable mechanism of the world skeleton. Uh, Actually, as an engineer, we build innovate technologies, and these technologies actually run the world. Okay, Deepak. Yes, sir. Yeah. So good to hear from you, sir. So apart from all this, so how's everything that you have been learning? What I want to know, like skill set and everything. What you happen to learn being an employee of an Agrawal Builders. Actually, see, Mostly I I want to said know about your work experience. कैसा रहा अभी तक आपका work experience? actually it is good. Saga Group always helped you with getting opportunities to take over the many projects, take over the solutions. Uh, काफी मदद करते हैं, हमारी करियर को भी ग्रोथ करने में करते हैं मदद, और हम भी अपने इनपुट्स दे पाते हैं। तो मैं जब स्कूल कॉलेजेस में था तो मैं बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर पे वर्क किया करता था। देन यही सॉफ्टवेयर्स मुझे एक्चुअली उस समय यही था कि आगे जाकर एक स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर बनना है। देन I got a placement in 2018, June 2018, और एक्चुअली उस समय काफ़ी कंपनीज मैंने क्रैक करी थी, 2-3 कंपनीज थी सामने सिविल इंजीनियरिंग की, लेकिन मैंने एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर ही मैंने एक चूज करा सो दैट कि मेरा करियर ग्रोथ इसी चीज़ में वर्क करे। एक्चुअली मैं वर्क करता था स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर्स पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स पे। देन today I'm here. We are working with the softwares, right? And believe me, uh,
मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जब इंजीनियरिंग लाइफ में होते हो और आप बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग समझना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले बुक स्टडीज करनी पड़ती है, सारे बुक्स स्टडी करो। देन बुक स्टडी करने के बाद फिर एक्चुअल क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है, उसके बारे में स्टडी करो। देन उसके बारे में सॉफ्टवेयर पे कमांड करो। देन सॉफ्टवेयर से कमांड करने के बाद देन आपके पास सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करो। फिर क्या करना होता है। वी हैव many opportunities like actually if we talk about myself, I got opportunities in field engineering and no, design engineering. I selected design engineering actually. तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी चीज पे फोकस कर लेते हो कि ड्यूरिंग द कॉलेज, तो आप वर्क कर पाते हो उस चीज पे, और सामने जो भी एम्प्लॉयर आता है आपका, देन आप उस पे उसके इंटरव्यू को क्रैक करते हो और ये आप प्लेसमेंट ले पाते हो। तो अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, तो मतलब आपके अंदर वो चीज पूरे अच्छे तरीके से होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरह से स्किलफुल होना चाहिए, बिकॉज मार्केट में मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो बिल्कुल स्किलफुल नहीं हो पाते, और उनका टारगेट कोई बेस नहीं होता है, कोई टारगेट सेट नहीं करते हैं, तो ये चीजें होती है। तो अगर सागर ग्रुप की पर्सनली बात करूँ, सागर ग्रुप ने मुझे कैसे हेल्प किया, तो चीजें ऐसी थी कि मैं स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर पे वर्क करता था। ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल मेरे बारे में जानता था कि आप स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है। तो सागर ग्रुप एक अपॉर्चुनिटी के साथ मेरे सामने खड़ा हुआ कि आई वांट टू एम्प्लॉय। सामने आया, फिर मैंने क्रैक किए। देन नाउ आई एम वर्किंग विद 2 years of experience as a practicing structural design engineer here. So मुझे लगता है कि सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको हमेशा आपके स्किल पे काम करता है। जब आप कॉलेज में होते हो, तो आई सजेस्ट व्यूअर्स को कि आपको सागर ग्रुप एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए, सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को, कि ताकि आप यहाँ आकर के यहाँ की फैसिलिटीज को लो, फैसिलिटीज देखो। समझ पाए, ट्रूली आप उनके सर्विसेज को देख सकें। राइट, या So well said by Mr. Vimlendra, बहुत सही। So now moving to नरेश, मुझे आपसे जानना है कि what do you feel कि आपने क्या changes रहे from the very first time जब आपने join किया सागर ग्रुप as an employee and now till yet? काफी चेंजेस तो काफी आया है मुझ में। जैसे मैं स्टार्टिंग में जस्ट पास आउट किया था, उसके बाद मैंने सागर मैन्युफैक्चर ज्वाइन किया था, तो मेरा बेसिक स्किल या जो भी अब मेरी लर्निंग प्रोसेस रही हो, वो सागर ने काफी हेल्प किया मुझे उसमें करने के लिए। और कांस्टेंट ग्रोथ में सागर ग्रुप का काफी हेल्प रहा। और मुझे नई टेक्नोलॉजी या नई अपग्रेडेशन से कॉन्स्टेंटली मेरे को हेल्प मिला कि मैं लगातार आगे बढ़ सकूँ, मूव कर सकूँ। तो इसकी वजह से सागर ग्रुप का काफी योगदान है। और सभी एम्प्लॉय के साथ, इवन हमारा काफी बड़ा ग्रुप है यहाँ पे, 400-500 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो सभी का आपस में साथ में रहना या एक दूसरे के साथ व्यवहार, बाकी हम जैसे सुनते हैं अदर इंडस्ट्री में इतना अच्छा वो नहीं है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट इतना नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मुझे काफी सपोर्ट मिला और काफी इजीली मिला यहाँ पे सर्वाइव करना, ग्रोथ करना काफी इजीली रहा यहाँ पे। Good. So now asking about पंकज के, मैं हमेशा से ये जानता हूँ कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हमेशा एक बहुत ही कीन चीज होती है कि लोग आज एम्प्लॉयज को सिलेक्शन करने से पहले ये जरूर चाहते हैं कि उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहे और चीजें मतलब बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहे एंड चीजें हैज टू बी वेरी गुड। सो सागर ग्रुप को लेके आपकी क्या राय है इसमें? राय बहुत अच्छी है यार। देखो, बहुत अच्छा ग्रुप है, सपोर्ट मिलता है पूरा। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जब मैंने एंट्री करी तब से सपोर्ट मिल रहा है। तो ऑल ओवर क्या कहें,
दिस इज समथिंग गुड। ये तो तभी समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट्स को जब इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सो और फ्री रहते हैं, सो आई कैन एक्सपेक्ट एंड आई कैन नो कि एम्प्लॉयज तो बहुत ही फ्रीली और खुश रहते ही होंगे। दिस इज बट ऑब्वियस, ये हम तो लाइव बिल्कुल एग्जांपल है उसके। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ मतलब कॉलेज लेवल पे सपोर्ट मिला, उसके बाद एज स्टूडेंट सपोर्ट पूरा तरीके से मिला, उसके बाद एज एम्प्लॉय सपोर्ट मिला, तो वो क्या कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब पूरा सब हाँ बिल्कुल। था। सो ऐसा मुझे भी लगता है कि सुनील आप बता सकते हैं कि अगर आपने सिस्टम में वर्किंग, सो कैसे ये चीजें कुछ अलग है, मतलब कुछ एक या दो पॉइंट्स अगर आप रोशनी डाल सकते हैं कि हाँ कि ये बाकी जगह नहीं होता, ये हमारे यहाँ होता है। हाँ, मतलब कि अपने कॉलेज में सिस्टेक में जैसे देखा जाए कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है एज फ्रेशर लेवल। तो ये एक बहुत ही मतलब कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अपने स्टूडेंट को इतना काबिल समझा जाता है कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं इतना। तो ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि सागर ग्रुप को अपने स्टूडेंट्स पे इतना विश्वास है। नाइस, गुड टू सी। ये एक बहुत बड़ी चीज कही आपने और बहुत ही सही कहा है कि जितना आप अपने एम्प्लॉय पे भरोसा करते हैं, चीजें फेथ रखते हैं, ही कैन मूव माउंटेन्स फॉर यू। So now telling about myself, I am mechanical engineering students of 2020 batch, and I've been working with corporate relation department first for 2 years. मैंने as an coordinator work किया, and from last 1 year I am working as an intern with। तो एक बहुत अच्छी चीज है कि थैंकफुल टू माय प्लेसमेंट सेल के ऑफर्स की तो कभी कभी थी नहीं रिगार्डिंग इंटर्न्स एंड जॉब्स एंड एवरीथिंग। बट हाँ, कुछ देखा कि एटलीस्ट इन्वायरमेंट यहाँ बेटर है बाकी जगह से, एंड बहुत फ्रीनेस है कि एटलीस्ट मैं ना अपने काम की अकाउंटेबिलिटी रख सकता हूँ, एंड आई नो कि ये काम मैंने किया है, सो पीपल आर इवन डूइंग अबाउट मी, एक अप्रिसिएशन मिलता है सामने से, दैट नॉट ओनली गिव्स यू एक मॉरल सपोर्ट के ठीक है आई एम डूइंग समथिंग गुड एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी, और इससे लोग बेटर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और जैसे मैं अब कहूँ कि मिस्टर वेबलेंगू ने बताया कि सागर ग्रुप इज वेरी बिग, लाइक वी आर वर्किंग ऑल इन स्कूल, वी हैव एसपीएस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट graduation colleges, we have SISTEC and other colleges as well, and in again industry we are in we are in as well as Sagar Rice, we are again in Agrawal Mills, we are in Sagar Yarn, so and एक बहुत अच्छी चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, दैट वर्ल्ड इज फेसिंग विद क्राइसिस, जहाँ बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो मुझे पॉइंट बहुत अच्छा याद आया कि एवरी डे वी आर फीडिंग अराउंड 3000 to 4000 of people, and this is something that really makes me proud that we are part of such organization that are not only helping his employees, वो अपने केवल employees की help नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ तक कि जितने भी लोग हैं poor people तो खुद को feed नहीं कर पाते और traveling के लिए वो उनको भी feed कर रहे हैं। So this is again gives you a moral support के आप एक proud feeling आती है कि I am the part of such organization। और मैं अच्छी चीज बताऊं कि एक अच्छे एम्प्लॉयर में आप क्या देखते हैं, एक पहली चीज कि दे शुड ट्रीट यू लाइक अ फैमिली, एक अच्छी टीम की तरह वर्क करे, एंड आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर आप आएंगे तो वी हैव अ गुड कल्चर कि हर एक एम्प्लॉय को फील होता है कि इट्स अ से निक फ्यूरी की एक लाइन मुझे याद आती है फ्रॉम एवेंजर्स 2 दैट दे सेड के ऑलवेज बिलीव के यू आर द पार्ट ऑफ सम बिग प्लान, आप हमेशा एक बहुत बड़े प्लान के हिस्सेदार हैं। सो थैंकफुल टू चेयरमैन सर एंड एमडी सर के हमेशा हमें ये फील करवाते हैं कि व्हाटएवर थिंग्स आर बीइंग प्लान्ड एंड व्हाटएवर पार्ट ऑफ अ फैमिली, बीइंग अ पार्ट ऑफ फैमिली, आप उस प्लान के एक हिस्से में हैं एंड यू आर डिजर्विंग दैट काइंड। सेकंड थिंग जो मुझे बहुत जी मैं कुछ बोलना चाह रहा था बीच में, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। देखो एक्चुअली मैं अगर सागर ग्रुप के बारे में बात करूँ तो जो बेस्ट थिंग है यहाँ पे, जब हम कॉलेज में आते हैं मतलब एक्चुअली हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली इंजीनियरिंग लाइफ कैसी होती है। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ इसलिए इंजीनियर की तरह बात कर रहा हूँ, इंजीनियर के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि जब मैं कॉलेज में आता हूँ तो
मतलब चीजें डिफरेंट मिलती है। बाकी कॉलेजेस में क्या होता है, देयर वाज सम रैगिंग्स एंड बहुत सारी चीजें होती है, बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे सीनियर्स होते हैं जो मतलब हमारे मैनेजमेंट से वेल नर्चर्ड होते हैं कि नहीं, जो बच्चा आ रहा है हमारे पास वो काफी उसको अच्छे से रखना, ताकि वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सके, अपने टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दे सके और सारे स्किल डेवलप कर सके। तो ये भी एक अच्छा इन्वायरमेंट बन पाता है। तो आप एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे आप बना लेते हो कि फिर आगे जाकर के आपको किसी एम्प्लॉयर के साथ वर्क करने में दिक्कत नहीं होती। और क्या है, हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से बहुत सारे एक्टिविटीज भी कराते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, लाइक सागर मंथन करवाते हैं। एंड हमारा हमारे ग्रुप में कुछ टेक्नो फेस्ट वगैरह भी होता है, जैसे मैं बात कर रहा था निर्माण वगैरह का। इन सब चीजों से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो एक्चुअल टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर पाता है, राइट। तो जब हम एक्चुअल वर्ल्ड जब एक्चुअल हम वर्ल्ड में एंटर करते हैं, जब हम एक एज अ एम्प्लॉय बन जाते हैं, तो चीजें सब समझ में आती है कि नहीं, वो चीज जो हमने उस स्किल को डेवलप किया था, आज हम उसी टेक्निकल स्किल को हम आज यहाँ पे उस चीज की मदद से हम अपने टेक्नोलॉजीज को इनहांस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग को इनहांस कर रहे हैं, है ना। तो ये सबके सामने रखता है, स्टूडेंट्स अच्छे सीखते हैं उससे। तो और जब मतलब कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि इस बार थोड़ी कंपनीज कम आई, देन सागर ग्रुप ऑलवेज Good to hear from Rimlendu. तो ये सब बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ का जैसा कि मैंने बात पहले भी करा, एक बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट है कॉर्पोरेट कल्चर का। तो आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ वर्क भी कर पाते हो, तो बहुत अच्छा है। सो इफ एज ए employer, I reviews the Saga Group as a 9 out of 10, right? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे एक लाइन याद आती है अगेन फिर से कि जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ आया था और मैंने जो पहले दिन एसएपी अटेंड की थी, सो आवर प्रिंसिपल सेड अ वेरी नाइस लाइन के इन सिस्टेक इंजीनियरिंग इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। तो मुझे वो लाइन हमेशा याद रहती है कि वी ट्रूली बिलीव्स इन दैट, और इन एवरी पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट वी आर डूइंग बेस्ट। जैसे मैं बता रहा था कि अगर एक पर्टिकुलर मैं सागर की बात करूँ तो क्या क्या है, वर्क एज अ टीम लीडर। और एक अच्छी चीज होती है कि वी हैव वेरी ओपन कम्युनिकेशन विद अस। हम हमेशा सजेशंस, कंप्लेंट्स और फीडबैक्स के लिए ओपन रहते हैं। फिर दूसरी एक बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूँ कि हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज देने पे बहुत बिलीव करते हैं और चीजें करते भी हैं। जैसे मैं ये अपनी बात करूँ, सो आई डिड एज एन वॉलंटियर, then I continued as an intern and as a corporate relation executive. So this is not just about me, but thousands of people are getting so many things from last so many. और एक और अच्छी चीज अगर बताना चाहूँ कि अगर एक बहुत अच्छे एम्प्लॉयर की बहुत क्वालिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को उसकी सर्विसेज और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में प्राउड फील कर रहा है। एंड वी ऑल हैव दैट फीलिंग के बिकॉज व्हाट हैपन के हमारे यहाँ क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे बहुत बात है। एंड वी हैव प्रीमियम क्वालिटी इन एवरीथिंग दैट वी आर बीइंग प्रोड्यूसिंग एंड ऑल दी सर्विसेज वी आर गिविंग। शेयरिंग विद प्रॉफिट्स बहुत अच्छी। एक चीज मुझे और याद आ गई, फाइल जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में क्या होता है, आप टॉप मैनेजमेंट से आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, बहुत सारे कॉलेजेस में होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज बहुत अच्छी है, आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन अगर ऐसा हो पाता है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्टूडेंट, जैसे कि मान लो कि लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं, अगर मुझे लाइब्रेरी की जरूरत है 24/7, तो मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि सर मुझे चाहिए, तो मुझे मिलता है वो चीज। तो वो काफी बहुत इफेक्टिव था, क्योंकि मैं वर्कशॉप को और लैब्स को, जो हमारा स्ट्रक्चरल लैब था, मटेरियल लैब था, वो मैं बहुत यूज करता था। तो उसके लिए काफी सीनियर मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से हमें बात करनी पड़ी, कॉलेज के टॉप मैनेजमेंट से। तो बात करेंगे तो वो तुरंत मुझे फैसिलिटेट कर देते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपने स्किल को डेवलप करने के लिए आप कभी डिस्टर्ब नहीं होते हो बाय द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ऑल्सो कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में होता है कि बहुत सारे हायरार्किकल लेवल्स को क्रॉस करना पड़ता है, देन
बहुत सारे चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे वो चीजें नहीं है, ये चीजें बहुत स्मूथ होता है। तो आप क्या होता है, क्विकली आपका इंटरेस्ट टूटता नहीं है बीच में। जैसे आप किसी एक्चुअल एक स्किल पे वर्क कर रहे हो, तो अगर आपके इंटरप्शन ऐसे आ जाए, कुछ फैसिलिटीज आपको नहीं मिल पाए, तो आप ये हो जाते हो, आप ब्रेक हो जाते हो। बट यहाँ पे वो चीज क्या है, आप स्मूथली चला सकते हो। आप एक नहीं, बहुत बहुत वेल सही कहा आपने। नर्चर्ड एक संजय, इंजीनियर। मैं खुद अपना लास्ट पॉइंट कहना चाहता था, यही चीज थी कि हमारे यहाँ वी ऑलवेज बिलीव दैट हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वी डोंट हैव द डिस्ट्रिक्ट टॉप मैनेजमेंट से लेके एक एम्प्लॉय, एंट्री लेवल एम्प्लॉय पोजीशन तक टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकता है। वी हैव क्लियर डिस्टेंस बिटवीन अस। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चीजें वर्क करने के लिए दे रिक्वायर्ड बेटर दीपक मैं लीडरशिप एंड लीडरशिप and दीपक a इसमें good कुछ yes sir, हेलो yes sir, we'll be coming to that. Yes sir. दीपक इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे मैं अपने कैंपस या कॉलेज के टाइम पे हमारे डिसिप्लिन काफी सिखाया जाता था, डिसिप्लिन, अटेंडेंस, लीडरशिप, काफी जैसे सेमिनार, वॉलेंटियर करना। तो ये सब चीजें जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो काफी हेल्पफुल रहती है। जैसे यदि हमने कहीं ग्रुप में काम किया है, एक लीडरशिप का काम किया है, तो यहाँ पे आपको एक ऐसे आप जीईटी ज्वाइन करते हो, तो ये सब एक आपकी जो ट्रेनिंग में या जो पार्ट आते हैं काफी हेल्प करता है। या फिर जैसे आपने डिसिप्लिन है, आपको कॉलेज में बताया था 78%, 80% अटेंडेंस। तो ये सब इंडस्ट्री में यदि आप दूसरे कॉलेज से आते हो तो वो एकदम से आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बट पार्ट ऑफ अ सागर ग्रुप, आप जैसे इंडस्ट्री में जाते हो तो उसके आप एक ऑलरेडी उस लेवल पे होते हैं, तो आप काफी हेल्प करता है आपको इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए। तो ये भी सागर ग्रुप में हमें बहुत इजीली मिल जाता है और काफी हेल्पफुल रहता है। इवन जो दूसरे ग्रुप में जाते हैं वो स्टूडेंट भी इस चीजों में काफी आगे रहते हैं कि हम इस ग्रुप से आए, सागर कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो हमें काफी फायदा मिला इस चीज का कि हम रेगुलर थे, हम डिसिप्लिन में थे। सो एक रिक्वायरमेंट होती है हर कंपनी की, नॉट इवन सागर ग्रुप बट अदर ग्रुप ऑल्सो। तो इस चीजों में हमारे कॉलेज का लेवल काफी ऊपर है। हाँ, ये बहुत सही कहा आपने। मैंने एक बार पढ़ा था कि यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड थ्रू आउट योर लाइफ, सो इट्स बेटर टू बी डिसिप्लिन्ड। तो आपको बहुत जी अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि आप हमेशा एवरी पार्ट ऑफ लाइफ और प्रोस्पेक्ट में आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। कभी कभी डिमोटिवेशन आते हैं, चीजें आती हैं। सो बेटर बी डिसिप्लिन्ड। अगर हमारे यहाँ चीजें डिसिप्लिन्ड होती हैं, और एक अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ अगर प्लान्स होते हैं, सो एवरीवन इज दैट पार्ट ऑफ प्लान। वो प्लान का एग्जीक्यूशन होता है, तो उस प्लान के एग्जीक्यूशन को बहुत ध्यान नजर रखते जाता है। तो उसके करने के बाद वी वर्क ऑन द फीडबैक्स के हाउ थिंग्स हैपन टू बी। So now concluding this session, we had a very nice interactive session with all the people here on the panelist. I would like to thank Pankaj, Sunil, Mr. Bimlendu and Mr. Naresh as well, who all the 4 people who have joined us. और एक बात मुझे बहुत सच्ची समझ में आई, अगर मैं सबके एक एक पॉइंट से भी लूं, सो पंकज हेल्प्ड अस टू नो के हाउ स्किल ओरिएंटेड वर्क यू शुड बी। आपको कैसे अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, कि अगर आप पर्टिकुलर किसी अच्छी चीज पे वर्क कर रहे हैं तो वो कैसे बेटर करें। सुनील टोल्ड अस कि कैसे एक अच्छा एनवायरनमेंट एक अच्छी पर्सनालिटी ग्रूम करता है। नरेश हेल्प्ड अस टू नो के अगर एक एम्प्लॉयर अच्छा वर्क करता है तो कैसे एक एम्प्लॉय का वर्क फोर्स तो क्वालिटी को ऐड करता है। एंड Vimlendu happened to told us that इनके बारे में मुझे बहुत अच्छी चीज थी कि व्हाट हैपेंड कि आपको अगर आप डिजाइनिंग में वर्क कर रहे हैं, बीइंग मैकेनिकल और सिविल, तो आपको फर्स्ट ईयर से लाइक बीइंग अ वेरी फ्रेशर कोई भी आपको डिजाइनिंग कभी नहीं मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दे नीड यू टू बी एटलीस्ट 4 ईयर 5 ईयर, एटलीस्ट 3-4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट मिस्टर Vimlendu गॉट इन द वेरी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ज्वाइन किया डिजाइनिंग पार्ट। सो दिस इज गुड, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हमारे एक अच्छा कल्चर है कि if you are proving that you are good for this thing, and so the group will help you to add values to yourself and make it best. So concluding this session, we had a very nice interactive session with everyone. Thank you all the attendees and the panelists for having a good interactive session with me. This is Deepak Singh and Mr. Pankaj and Mr. Sunil Vimlendu. Thank you very much for coming for this session. And I happen to be a good part of Systech. Nice journey from a coordinator to an executive, with lots of learning, with lots of things that are going to help me throughout the career we have. It was a very nice session, everyone. Thank you, everyone. Have a good day ahead. Bye-bye. Thank you Deepak, thank you, Okay, thank thank you everyone. you everyone. Yeah. Uh, Thank you.